بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ جنت، عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی یعنی ان لوگوں کے لیے جو اللہ تبارک و تعالی جن سے راضی ہے ان کے لیے جو مہمان خانہ بنایا ہے اس کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے جنت۔ اصل میں جنت جو نام ہے وہ اللہ کی رضا کا نام ہے اور جہنم جو ہے وہ اللہ کی ناراضگی کا نام ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، جنت سے بہتر کوئی اور جگہ نہیں رہنے کی اور جہنم سے بری کوئی اور جگہ نہیں ہے رہنے کی، لیکن جنت کو حاصل کرنا اور جہنم سے بچنا عزیز دوستو یہ دنیا کے اندر ہمارے لیے ایک امتحان کی جگہ ہے۔ یعنی دنیا کے اندر ہم اپنے لیے انتخاب کر سکتے ہیں کہ ہم جو ہے جنت میں جانا چاہتے ہیں یا جہنم کے اندر۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام سے وہ غلطی ہو گئی تھی، جو جس پھل کو کھانے کے لیے منع کیا گیا تھا وہ پھل کھا لیا تھا، تو پھر اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تاکہ وہ توبہ کر لیں اور توبہ کے بعد دوبارہ جنت کو حاصل کر لیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم سے بھی گناہ ہو جائے تو عزیز دوستو ہمارے لیے توبہ کا ایک موقع ملا ہوا ہے، اور توبہ کی قرآن کریم نے تقریباً 3 شرائط بیان کیے ہیں، اور وہ 3 شرائط میں نے گاہے بگاہے کئی بار آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں، اور وہ تینوں شرائط یہ ہیں۔ نمبر 1، آدمی تہ دل سے اپنے ارادے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ عہد کرے دل کی گہرائیوں کے ساتھ کہ آئندہ یہ غلطی میں نہیں کروں گا۔ دوسری یہ کہ جو غلطی عام طور پر ہوئی ہے اس کی توبہ بھی عام طور پر، یعنی اگر کوئی دین کا مسئلہ غلط بتلا دیا ہے یا ایسی کوئی غلطی ہو گئی ہے جو عام طور پر ہوئی ہے تو اس کی توبہ بھی عام طور پر ہی ہوگی، اور اگر کوئی دین کا مسئلہ غلط بتلا دیا ہے تو اس کا بھی ازالہ کرنا ہوگا کہ بھئی یہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی اور میں نے یہ مسئلہ ایسے بتلا دیا تھا، یہ غلط تھا، صحیح بات یہ ہے۔ اور تیسرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رو کر اس کے سامنے جو ہے یعنی ندامت کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ سے عرض کرے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے ساتھ، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم کے ساتھ، یا اور کسی بھی الفاظ کے ساتھ استغفر اللہ، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے معافی کے ارادے کے ساتھ اس بات کو یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے کہہ رہا ہو کہ اللہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا یا آئندہ نہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ البتہ انسان ہے، پھر بھی غلطی ہو سکتی ہے، لہذا یہ جو الفاظ ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین والے جو الفاظ ہیں یہ سب سے بہتر ہیں، کیونکہ انسان ہے، غلطی پھر بھی ہو سکتی ہے۔ غلطی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک غلطی کی جاتی ہے جو جان بوجھ کر کرتا ہے، اور ایک غلطی وہ ہوتی ہے جو اس سے عمدن ہو جاتی ہے، یعنی ارادہ نہیں تھا لیکن ہو گئی۔ عزیز دوستو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو غلطی جان بوجھ کر کی گئی ہے اگرچہ اس کی توبہ ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے، کیونکہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے
کہ जब तक तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, जब तक पश्चिम की तरफ से यानी मशरिक की तरफ से सूरज निकलकर बुलंद ना हो जाए, वो मगरिब की तरफ से सूरज निकलकर बुलंद ना हो जाए, उस वक्त तक तौबा का दरवाजा खुला हुआ है अजीज दोस्तों। और हर इंसान के लिए उस वक्त तक तौबा का दरवाजा खुला हुआ है जब तक वो नजा की हालत में ना पहुंच जाए, यानी जब तक उसको ये यकीन ना हो जाए कि अब मेरी मौत करीब बिल्कुल आ चुकी है, उस वक्त तक उसके लिए तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। हाँ, अगर तौबा करते ही उसकी मौत आ जाए तो सही जो सियाह सित्ता के अंदर जो हदीस मौजूद है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक साहब तशरीफ लाए और आकर के उनसे बातचीत की। तकरीबन 70 साल की उम्र थी और उन्होंने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहकर अल्लाह के एक होने और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने की गवाही दी और कुछ ही देर के बाद इंतकाल हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई नमाज नहीं पढ़ी, कोई रोजा नहीं रखा, कोई सदका नहीं दिया, कोई सुलह रहमी नहीं की, कोई नेकी का काम नहीं किया, हमेशा पूरी जिंदगी को 70 साल जिंदगी को कुफ्र में, शिर्क में, बिदातों में गुजार दिया, लेकिन मौत आई तो अल्लाह तबारक तआला ने उसको जन्नत अता कर दी। तो अजीज दोस्तों, असल में तौबा की हकीकत यह है। लेकिन जन्नत क्या है, जन्नत के बारे में मैं आपको बतलाता हूं। यह हदीस सुनन निसाई के अंदर है और सुनन अबू दाऊद के अंदर भी है। और सुनन अबू दाऊद के अंदर जो हदीस है इसका नंबर है 4744 नंबर है इसका। अजीज दोस्तों, जन्नत कैसी है और जहन्नम कैसी है, आओ हम अल्लाह तबारक व तआला के से और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से मालूम कर लेते हैं कि अल्लाह की रजा कैसी है और अल्लाह की नाराजगी कैसी है। अजीज दोस्तों, अल्लाह तबारक तआला ने जन्नत को बनाया और जन्नत को ऐसा बनाया, उसके अंदर बागात बनाए, नहरें बनाई, कहीं दूध की नहरें बनाई, कहीं शहद की नहरें बनाई, कहीं और चीजों की नहरें बनाई और तरह तरह की नेमतें, ऐसी ऐसी नेमतें बनाई जिनका आदमी ख्याल तक भी नहीं ला सकता, जिनका यानी उनका ख्याल तक भी दिलो दिमाग पर गुजर नहीं सकता, उनके बारे में सोच भी नहीं सकता। ऐसी ऐसी नेमतें बनाई अल्लाह तबारक तआला ने जन्नत के अंदर। और जहन्नम के अंदर ऐसी आग भड़काई जो दुनिया से भी 69 दर्जे बढ़ी हुई हो। ऐसे ऐसे सांप रखे जैसा कि ऊंट की होज यानी ऊंट की ओज होती है, और ऐसे ऐसे बिच्छू रखे जितना बड़ा खच्चर होता है। और फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कहा कि जाओ, मैंने जन्नत बनाई है और मैंने जहन्नम बनाई है, उसको देख करके आओ। चुनाचे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत को देखने गए और फिर जहन्नम को भी देखा। मैं हदीस को मुख्तसर किए देता हूं अजीज दोस्तों। और जाकर के अर्ज की, ए अल्लाह, जन्नत तूने ऐसी बनाई है, बहुत लोग यानी कोई आदमी ऐसा नहीं होगा, कोई शय ऐसी नहीं होगी जो उसमें ना पहुंच सके। हर इंसान उसके अंदर पहुंच जाएगा, हर जिन्नात उसके अंदर पहुंच जाएगा, क्योंकि जन्नत बनी ही जिन और इंसानों के लिए है। हर चीज यानी हर इंसान उसके अंदर पहुंच जाएगा और हत्तुल इम्कान कोशिश करेगा उसमें जाने की। और जहन्नम तूने ऐसी बुरी बनाई है, कोई भी उसमें नहीं जाएगा। मैं समझता हूं कोई भी ऐसा काम नहीं करने का जो उसके अंदर चला जाए। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत को मुश्किलात से ढांप दिया और जहन्नम को ऐशो आशाइश से ढांप दिया। और फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा कि जाओ दोबारा देख करके आओ। अब जो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम गए हैं जन्नत को देखने के लिए, तो वो मुशक्कत से ढकी हुई है, यानी सर्दी के मौसम में लिहाफ और कंबल छोड़कर नमाज पढ़ने से, और बाजारों में और गलियों में जो गैर महरम औरतें घूमती हैं उनकी तरफ देखने यानी न देखने की मुशक्कत, और दुनिया भर की जो नेकोकारों की जो अपने पास पैसा है उसमें से अल्लाह तबारक तआला के राह में खर्च करने की मुशक्कत, और भी कई सारी चीजें जिनका मैं जिक्र कर सकता हूं अजीज दोस्तों। बहुत सारी चीजों से अल्लाह तबारक तआला ने जन्नत को ढांप दिया और ऐसी मुश्किलात से ढांप दिया। कैसी मुश्किलात
चलो हम हजरत खब्बाब रजी अल्लाह उनसे पूछते हैं कि जन्नत कितनी महंगी है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह उनके जमाने में हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ने हजरत खब्बाब को बुलाया, खब्बाब जब तुम ईमान लाए तो तुम्हारे साथ क्या गुजरी? तो हजरत खब्बाब ने जवाब कुछ नहीं दिया, बल्कि उनकी तरफ पीठ कर दी और अपनी कमर से कुर्ता उठा दिया। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु रोने लगे और फरमाया कि ऐसी कमर तो मैंने किसी की आज तक देखी ही नहीं है। तो कहने लगे, उमर, जब मैंने अपने ईमान का ऐलान किया तो मुशरिकीन मक्का ने जमीन पर अंगारे बिछाए और मुझको उन पर लिटा दिया और एक शख्स छाती पर पांव रखकर खड़ा हो गया ताकि मैं जुम्बिश ना कर सकूं, यहां तक कि मेरी कमर जल गई। और बाज रिवायात में आता है कि उनके खून निकलने और उनके जो बदन से निकलने वाला पानी था उसके जरिए वो अंगारे बुझे थे। अजीज दोस्तों, पता ये चला, जो आदमी एक बार कलमा पढ़ लेता है वो ये समझता है कि अगरचे मैं नमाज ना पढ़ूं, वो ये समझता है कि अगरचे मैं रोजा ना रखूं, वो ये समझता है कि अगरचे मैं मालदार हूं ज़कात ना दूं, वो ये समझता है कि वसत होते हुए भी अगरचे मैं हज ना करूं क्योंकि मैंने कलमा पढ़ लिया मैं जन्नत में चला जाऊंगा। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं अजीज दोस्तों, हरगिज नहीं। अगर ऐसा होता तो हजरत खब्बाब रजी अल्लाह तआला की चमड़ी जलाई ना जाती। अगर ऐसा होता तो हजरत बिलाल रजी अल्लाह उनको जमीन पर डालकर घसीटा ना जाता। अजीज दोस्तों, अगर ऐसा ना होता तो इतने सहाबाए किराम ने मुशक्कतें उठाई हैं, उनको उठाने की कोई जरूरत नहीं थी। बहरहाल हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जन्नत को देखा, फिर जहन्नम को देखा, ऐशो आशाइश से भरी हुई। अजीज दोस्तों, लहू लाब से, गुनाहों से और दुनिया के ऐशो इशरत से भरी हुई है। तो अल्लाह तबारक तआला के सामने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने यह अर्ज की कि अल्लाह, तूने जन्नत को ऐसी मुशक्कतों से ढांप दिया है कि कोई भी, मैं समझता हूं बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो जन्नत में पहुंच सकेंगे, और तूने जहन्नम को ऐसे आशाइश से ढांप दिया है कि बहुत कम लोग उससे बच पाएंगे, बहुत कम लोग। इसीलिए एक हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कयामत के रोज आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा अपनी औलाद में से जन्नती अलग कर दो, जहन्नमी अलग कर दो। चुनाचे हजरत आदम अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे, ए अल्लाह, कितने जन्नती निकालूं, कितने जहन्नमी निकालूं? तो अल्लाह ताला का इरशाद होगा कि 1000 में से एक जन्नती निकालो और 999 जहन्नमी निकालो। अजीज दोस्तों, ये सुनकर सहाबाए किराम तो रोने लगे, और रोने का मकाम ही था, क्योंकि 1000 में से एक आदमी किस, यानी कौन जन्नत में जाएगा, पता नहीं किसका नंबर आएगा किसका नहीं आएगा। इसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तसल्ली दे दी। अजीज दोस्तों, हदीस तवील हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला, इससे आगे का हिस्सा अगर मौका मिलेगा तो मैं आपके सामने बयान कर दूंगा। अब क्योंकि शव्वाल का महीना लगने, उसका यानी कि शाबान का महीना लगने वाला है, इसलिए मैं आपके सामने चंद अहदीस शाबान के महीने की यानी शाबान के बाबरकत महीने के एतबार से आपके सामने पेश करूंगा। और फिर क्योंकि रमजानुल मुबारक का महीना आ जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा कि गाहे बगाहे कुछ हदीसें आपके सामने कुरान करीम के जरिए और अहदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए रमजानुल मुबारक के बारे में मैं आपको बतलाने की कोशिश करूंगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको इन मुख्तसर सी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और जितनी बातें हक निकली हैं अल्लाह ताला हमारे दिलों के अंदर उनको रासिख फरमाए, और जितनी बातें गलत निकल गई हैं अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि उन सबको हमारे दिलों के अंदर से निकाल दे, और हक बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हक बातों को कहने और सुनने की भी तौफीक अता फरमाए, और उन पर अमल करने के मौके भी अता फरमाए, और उन पर अमल करना आसान भी फरमाए। व आखिरी दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तबारक व तआला व बरकातुहू।